A very good morning, class 4 children. Today we are going to do direct and indirect speech. I took direct and indirect speech in your um, from your book, which is also called reported speech, on page 138. But that video, when I had heard, it is not very loud, so it is difficult to understand. But then today I am going to start a reported speech again. And in your live class, I'll be taking those reported speech of your book again so that you are able to understand. Okay. Now, what is reported speech? Reported speech means when you speak something, um, when you when you speak something um, directly to a person, then that is a direct speech. And when somebody else speaks on your behalf, that becomes indirect speech. Now, suppose I tell you, father is making shikarni and momos for dinner, said mother. मदर ने कहा, पापा शिकरनी और मोमोज बना रहे हैं डिनर के लिए. तो ये क्या है? दिस इज डायरेक्ट स्पीच, बिकॉज फादर मदर ने कहा, फादर बना रहे हैं. ओके. एंड व्हाट विल बी द इनडायरेक्ट स्पीच? मम्मी ने कहा, नॉट सम थर्ड पर्सन. मम्मी ने कहा फादर बना रहे हैं, तो डायरेक्टली बोल दिया. अब कोई थर्ड पर्सन अगर अगर मम्मी के बारे में बता रहा है कि मम्मी ने कहा कि फादर बना रहे थे, सो दैट बिकम्स अ इनडायरेक्ट स्पीच. हाउ? मदर सेड दैट father was making shikarni and momos for dinner. So that means the same statement, if it is told by a third person, by another person, that becomes an indirect speech. Now suppose, uh, look at these examples here. Direct speech uses the exact words of a speaker. Exact words. These words are written within quotation marks. Now, when there is a direct speech, you write the words directly within the inverted commas. That is always a direct speech. Now, for example, Ravi said, Ravi ne kaha, I am very busy. Now, look, I am very busy is in the inverted commas. So that means Ravi ने जब कहा तो उसने डायरेक्टली बोला एंड ये कहा, आई एम वेरी बिजी, मैं बिजी हूँ. नाउ व्हाट विल बी द इनडायरेक्ट स्पीच? इट रिपोर्ट्स व्हाट द स्पीकर हैज सेड. नाउ रवि सेड. नाउ इनडायरेक्ट स्पीच रिपोर्ट्स दैट व्हाट द स्पीकर हैज सेड. स्पीकर ने क्या बोला, कुछ कोई और थर्ड पर्सन बता रहा है, तो उस केस में क्या होगा? रवि सेड, रवि ने कहा. जब जब सपोज रवि ने कहा वो बहुत बिजी है, ये तो डायरेक्ट हो गया. अब आप अगर रवि के बारे में बता रहे हो, सपोज ईशान और हर्ष, इफ दे आर टॉकिंग अबाउट रवि, सो उस केस में क्या होगा? रवि सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी. So that means when the third person tells about Ravi, in that case, you always put the inverted commas off. You don't put the inverted commas, and you put a that, and after that, I का ही बन गया, am का was बन गया, और very busy same रहा. You can see Ravi said that he was very busy. बिकॉज आप बता रहे हो रवि के बारे में, तो आप उसको आए तो नहीं बोलोगे, ही बोलोगे दैट ही वॉज वेरी बिजी. सो प्लीज अंडरस्टैंड द मेन पॉइंट इन द रिपोर्टेड स्पीच, इन द इनडायरेक्ट स्पीच, then only you will understand. Okay, I hope you have understood how much I have told you. Ravi said, I am very busy. This is a direct speech, क्योंकि ये direct speech is in inverted commas. और उसी को जब कोई थर्ड पर्सन बोलता है, रवि सेड दैट, क्या लगेगा? दैट रवि सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी. वो बहुत बिजी था, वो बहुत बिजी था. तो थर्ड पर्सन उसके बारे में बता रहा है, तो
आप ही लगाओगे. ये तो नहीं बोलेंगे रवि said that I was very busy. No, it is not a direct speech. It is an indirect speech. Now, just remember that changing direct speech into indirect speech, you have to change the words also. Direct speech and indirect speech. I, we, I and we का क्या हो जाएगा? He, she and they. Is am are का was were हो जाएगा. Do का did का had done. There, these का that those हो जाएगा. Here का there, tonight का that day, last night का the previous day, tomorrow का the next day, yesterday का the previous day, today that day, next week the following now, will का would, shall का should and can का could. Now you have to write all these changing words in your classwork copy. In fact, this whole direct speech you have to just put it in your grammar copy. The whole classwork you have to just write down on in your classwork copy. Okay, you have to just write down direct and indirect speech, and you have to write down all this in your classwork copy. Now change the following sentences into indirect speech. Now what you have to do is you have to change these sentences into indirect speech. Now the first one is, his mother told, you should never tell a lie. उसकी मम्मी ने कहा कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए. अब उसकी मम्मी ने कहा तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए. ये डायरेक्ट स्पीच इज इन इन्वर्टेड कॉमर्स. नाउ हाउ यू विल राइट इनडायरेक्ट स्पीच? Now what will happen to you? Is it written you somewhere here? No. Anyhow, his mother told, inverted commas remove, his mother told that we should never tell a lie. यू का क्या हो जाएगा? वी. और अगर थर्ड पर्सन बोल रहा है तो हिज मदर टोल्ड, उसकी मम्मी ने कहा कि उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, या उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए. हिज मदर टोल्ड दैट यू शुड नेवर टेल अ लाई. इसमें क्या होगा? सिंपली आपके इन्वर्टेड कॉमास हटेंगे, दैट लगेगा, एंड आफ्टर दैट यू शुड नेवर टेल अ लाई विल रिमेन द सेम. नाउ नेक्स्ट देखिए. अहमद सेड दीज ग्रेप्स आर सार. अहमद ने कहा ये अंगूर खट्टे हैं. अब अगर थर्ड पर्सन बोल रहा है, अहमद ने तो कहा ये अंगूर खट्टे हैं. ओके. अगर 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 कशिश बोलता है तो कशिश क्या बोलेगा? अहमद सेड दैट दोज ग्रेप्स वर सार. दीज का क्या हो जाएगा? दोज. वो अंगूर खट्टे थे. क्योंकि ये बात कशिश अहमद के बारे में बता रहा है. कशिश बता रहा है. जब कशिश अहमद के बारे में बता रहा है तो वो सब पास्ट टेंस में हो जाएगा. अहमद सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव, दीज का क्या हो जाएगा? दोज ग्रेप्स. आर का क्या हो जाएगा? वर सार, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव, फुल स्टॉप. हैव यू अंडरस्टूड? नेक्स्ट. आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे सेड जॉन. जॉन ने कहा मेरे को आज ठीक नहीं लग रहा है, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है. अब जॉन ने तो डायरेक्ट स्पीच बोली. अब अगर खुशी बोलेगी जॉन के बारे में तो कैसे बोलेगी? जॉन सेड दैट ही वॉज नॉट फीलिंग वेल टुडे का क्या हो जाएगा? ऊपर आप फॉर्म में देखो, उसमें टुडे का क्या हो जाएगा? टुडे दैट डे. टुडे का कन्वर्ट करके क्या हो जाएगा इंडायरेक्ट स्पीच में? दैट डे. क्या बोलेंगे? जॉन सेड दैट he was not feeling well that day. तो ये कौन बता रहा है? ये खुशी बता रही है. किसके बारे में? जॉन के बारे में. तो जब खुशी जॉन के बारे में बता रही है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी.
और पास्ट टेंस में हो जाएगी. नाउ फोर्थ वन, द प्रिंसिपल सेड वी विल डिस्कस दिस मैटर नेक्स्ट वीक. प्रिंसिपल सेड कि हम ये मैटर को अगले हफ्ते डिस्कस करेंगे. नाउ ये तो प्रिंसिपल ने डायरेक्टली बोला. अब अगर प्रिंसिपल की बात कौन बोलेगा क्लास में से? आर एस बोलता है, तो वो क्या बोलेगा कि प्रिंसिपल ने कहा कि वो डिस्कस मैटर करेंगी बाद में. नेक्स्ट वीक का क्या हो जाएगा? नेक्स्ट वीक देखिए क्या लिखा है, फॉलोइंग वीक और आगे. ठीक है, क्योंकि वो आर एस बता रहा है. अब द प्रिंसिपल सेड दैट, वी का क्या हो जाएगा? दे. देखिए वी का क्या लिखा है? दे. द प्रिंसिपल सेड दैट दे वुड, विल का क्या हो जाएगा? वुड. दे वुड डिस्कस दैट मैटर, दिस का क्या हो जाएगा? दैट. दे वुड डिस्कस दैट मैटर द फॉलोइंग week. The following week. It is the following week. the following week. Okay. So listen to the video carefully and then do the questions. These lines. Now fifth one. Seema said, I have passed the examination. सीमा ने कहा कि उसने एग्जामिनेशन पास कर लिया है. अब इसमें क्या होगा? सीमा सेड. अब अगर सीमा ने तो बोला कि उसने एग्जामिनेशन पास कर लिया है, और अगर यही बात क्लास का कोई बच्चा बताता है, या कौन बताएगा, सपोज हर्ष बताता है, तो क्या बोलेगा? सीमा सेड दैट शी, क्योंकि वो तो डायरेक्ट स्पीच थी तो इन्वर्टेड कॉमर्स में थी. सीमा सेड दैट शी हैड पास द एग्जामिनेशन, फुल स्टॉप, नो इन्वर्टेड कॉमर्स. ओके. Sixth one, the children said we will be going for a picnic tomorrow. The children said that we will be going for a picnic tomorrow. Now in this what will happen? चिल्ड्रन ने बोला कि हम पिकनिक के लिए कल जाएंगे. ये तो डायरेक्ट स्पीच है, चिल्ड्रन ने बोला. अब अगर आप चिल्ड्रन की बात बता रहे हो, कोई भी बच्चा और बता रहा है क्लास 4 का, तो वो क्या बोलेगा? द चिल्ड्रन सेड दैट दे वुड बी गोइंग फॉर पिकनिक the next day. Okay, tomorrow का क्या हो जाएगा? the next day. Okay, because जब आप बच्चों के बारे में बता रहे हो तो आप इनडायरेक्टली बता रहे हो, उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज़ डू दिस वीडियो केयरफुली. These 6 you have to do it in your class for copy, and you have to write all these direct and indirect speech in your grammar copy. And even the first, you have to simply just do the whole worksheet in your grammar notebook. Okay children, do it, finish off the work and show it to Priya ma'am by 4 p.m. today. Okay, thank you and have a nice day. And today in your live class we'll be discussing the reported speech again, because that video is not clear. Okay.